सो अभी हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स करने वाले हैं. सो क्या है इसमें नाउ. ओके, so we're gonna start mechanical properties of solids. So the first thing we learn about is elasticity. So elasticity is the property of the object by virtue of which it regains its original configuration after removal of the deforming force. तो इलास्टिसिटी क्या होता है? सपोज मैं एक स्प्रिंग के बारे में सोचता हूँ, तो एक स्प्रिंग के एंड पे अगर मैं एक मास लोड करता हूँ, नाउ if I leave it like this, it means what? This is an equilibrium position. Now if I apply a force and take the object to the and pull the object, so what we have, this force which we are using to pull the object is known as the deforming force, because it's removing its position from equilibrium position. So a force which produces a change in configuration of the object on applying it is called a deforming force. तो ये जो स्प्रिंग है इसका क्या हो रहा है? इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है. सो नाउ it was in equilibrium position, it has a proper shape, but once we pull that object, what happens is that the spring elongates like this. So there is an increase in length, there is an increase in length of the spring, and this property of once we pull that object and that object goes back to its equilibrium position, this property of that object or of the spring is known as the elasticity. Okay, and this only happens when we remove the force, and if we keep on giving that force, the object will not go back to its original position. Now we have perfectly elastic bodies. So those bodies which regain its original configuration immediately and completely after removal of deforming force are called perfectly elastic bodies. मतलब जिन सब ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा डिफॉर्म किया और वो फिर से अगर उसके ओरिजिनल फॉर्म में बैक कर गया तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़. तो कोई रबर बैंड पकड़ लो, तो कोई इफ़ वी स्ट्रेच अ रबर बैंड and we remove that force, deforming force, the rubber band will come back to its original shape. So those are known as perfectly elastic bodies. Now perfectly plastic bodies, so those bodies which do not regain its original configuration at all on the removal of deforming force are called perfectly plastic bodies. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिफॉर्म करता हूँ by using deforming force and that doesn't regain back to its original shape or equilibrium position, तो उसको क्या कहते हैं? perfectly plastic bodies. जैसे कि mud हो गया, paraffin, putty, then wax, so they don't regain back to its original shape. So this is what we know about elasticity. Now the next one is, now what property of the solids gives this elasticity? Now it is basically the elastic properties. So in solid, atoms are bonded together by interatomic or intermolecular forces and stay in equilibrium position. तो रेस्ट पे अगर देखा जाए तो सॉलिड्स क्या होता है कि we can think of that their atoms which are bonded by interatomic forces, they are in a stable equilibrium, they have no motion or something, so they just stuck to its position. सो व्हेन अ सॉलिड इज़ डिफॉर्म, नाउ जब मैं कोई डिफॉर्म कर रहा हूँ, जब मैं कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको सोच लो ये एक सॉलिड है. तो सॉलिड में क्या होता है कि दीज आर एटम्स, दीज सर्कल यू कैन सी हियर स्फीयर्स, दीज आर एटम्स and they are bonded by interatomic forces, and this spring, they act as the interatomic forces. Now once you apply a deforming force to a spring, what happens? It compresses, yeah, there is a rarefaction in there. Okay, so same case in solids, what happens if I think of it like that, when a solid is deformed, the atoms are displaced from their equilibrium position, causing a change in interatomic distances. तो suppose यहाँ से मैं अगर एक फोर्स अप्लाई किया तो दी स्प्रिंग्स, सो दिस स्प्रिंग विल कम डाउन, तो यहाँ पर एक कॉम्प्रेशन होगा,
तो ये सपोज ये जो स्फीयर है, now think of the sphere, it will come in here, so these distances will reduce. So like this way, if we apply a deforming force on a solid, what happens that they lose their equilibrium position and the atoms are displaced from their equilibrium position, causing a change in interatomic distances. तो ये जो distances है ये change हो जाएगा by compression or rear. After then when it tries to regain back its position, then rear fractions will happen. So like this way the elasticity of a solid works. So when the deforming force is removed, this is the most important, when the deforming force is removed, the interatomic forces tend to drive them back to their original positions. तो interatomic forces का मतलब क्या है? उसका मतलब spring. The spring tries to get them back to its original position. Thus the body regains its original shape and size. The restoring mechanism can be visualized by the model of spring ball system. तो ये इसको spring ball system कहते हैं. Here the ball represents atoms and spring represents interatomic forces. So it is just like a spring and an object connected to the end of it. Okay. Now next thing, अब जो करने वाले, हाँ हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक उसके रिलेशन के बारे जानते हैं. Now let's try to get the relation between stress and strain. Then we'll go into stress and strain. The first thing, let us think of springs. Now spring में क्या होता है? तो we all know in a spring if I connect an mass in the end of it, तो होता क्या है spring में actually? So if I apply a force, तो यहाँ पर deforming force में apply कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये spring elongate करेगा, right? So there will be a delta L change in the length of the spring. And why is that delta L change? Because we have applied a deforming force. Now to regain back to its original shape, what the spring will do? It will apply a force, restoring force Fr, to get back to its original force when the deforming force is removed. So basically ये बैलेंस करना चाहेगा कि Fr and F बैलेंस करेगा, तभी जाकर वो एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा जब मैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूँगा. तो वंस आई सी इज दैट कि दिस del L, that length, the del L length is directly proportional to the force. We can say that because the more the force, the greater the deformation will be there. अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा तो ज़्यादा लेंथ का चेंज होगा. तो नेक्स्ट, सो दिस इज वी गॉट द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन लेंथ विद द फोर्स. नाउ नेक्स्ट वी आर गोना डू इज व्हाट. अब क्या करेंगे? अब अगर मैं लेंथ के बारे में सोचता हूँ, अगर दो स्प्रिंग में ऐड करता हूँ, सपोज मैं दो स्प्रिंग ऐड करूँगा यहाँ पर, तो दो स्प्रिंग के अक्रॉस अगर मैं लोड पुट किया एंड इफ आई पुल दिस वन विद द फोर्स F, दो स्प्रिंग है और मैं F फोर्स से पुल कर रहा हूँ, तो क्या होगा? इसके लिए दोनों स्प्रिंग ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कराएगा. सो both the strings have restoring forces, and for both the strings you see there will be a del L and del L displacement will there. So here we see is that twice of del L displacement in here. And how twice of del L displacement? Because मैंने स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया, और सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो फोर्स मैंने अप्लाई किया उसके लिए दो स्प्रिंग्स का रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट करेगा. तो उसके लिए इस पहले वाले के लिए भी del L, दूसरे वाले के लिए भी del L, एंड वी आर अप्लाइंग द सेम डिफॉर्मिंग फोर्स फॉर द फर्स्ट केस ऑल्सो, सेकेंड केस ऑल्सो. सो इन हियर व्हाट वी सी इज दैट del L is directly proportional to the length. The greater the length, the greater the deformation will be. So that's the idea of this portion. Now the next one is what we are going to do is, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं पैरेलली दो स्प्रिंग को कनेक्ट कर रहा हूँ. अब देखते हैं क्या होता है. तो अगर दो स्प्रिंग को मैं पैरेलली कनेक्ट किया और उसके एंड पे अगर मैं लोड पुट किया एक, एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, तो यहाँ से अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूँगा जैसे प्रीवियसली दो केस में किया था,
तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग, यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी हाफ ऑफ एफ आर। यहाँ पर दोनों में हाफ हाफ, जो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा वो हाफ हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा. नाउ फॉर दिस हाफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स द डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो बिकम हाफ ऑफ डेल एल. यहाँ पर हाफ ऑफ डेल एल बन जाएगा. तो अगर मैं स्प्रिंग्स को पैरेलली कनेक्ट करता हूँ तब मेरा जो डिफॉर्मिंग लेंथ है, द चेंज इन लेंथ विल बिकम हाफ. So here, from here, I see that the deforming, the length del L is directly proportional, inversely proportional to 1 divided by number of springs in parallel. Okay, so these are the three relations which we got. अब हम लोग यहाँ पर इलास्टिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तीन केसेस को अब तीन रॉड्स में बदल देते हैं, तीन केसेस ऑफ रॉड्स में बदल देते हैं. तो पहला केस अगर मैं रॉड के बारे में सोचूंगा, 1 सेकेंड, अगर मैं रॉड के बारे में सोचता हूँ तो व्हाट वी हैव इन हियर इज़ कि इन हियर फिर से अगर मैं जितना फोर्स अप्लाई करूँगा, और इस रॉड का लेंथ समझ लो L है, तो जितना फोर्स मैं अप्लाई करूँगा उतना ही एलोंगेशन होगा. The same amount of del L change will be there. So again for rod also we get the relation as F is directly proportional to, I will write this one as del L is directly proportional to F. तो ये हो जाएगा del L is directly proportional to F. This is the first condition. It's quite similar as the first condition for the springs. Now the next condition is अगर मैं दो रॉड को end to end, if I connect them like this, so now if I apply a deforming force, so what happens again, what we see is that यहाँ पर two forces, two restoring forces in the both the rods will apply, and you will see a twice del L change. तो पहले वाला यहाँ, here you will see a del L change. So basically here we have a twice del L चेंज आएगा अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट del L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. ओके, सो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब पैरेलल कनेक्ट करना है. तो अगर मैं पैरेलली इसको कनेक्ट किया तो अब क्या होगा, तो पैरेलली कनेक्ट करने से, तो जैसे स्प्रिंग में पैरेलली कनेक्ट होता है तो क्या होगा, तो इफ़ आई अप्लाई द फोर्स, apply the force, now what happens is that the restoring force here will be half Fr and here will be half Fr. So the deformation what you're gonna see is it will be half del L. So in here जनरली रॉड्स को तो हम लोग पैरेलली कनेक्ट नहीं करते हैं. तो अगर इसको मैं कैसे सोचूंगा, इसको मैं सोचूंगा अ रॉड विथ अ ग्रेटर थिकनेस. I will think of this one as a rod with greater thickness. तो अगर किसी भी रॉड का ज़्यादा थिकनेस हुआ तो इसको सोच लो, think of this one as a bigger cross sectional area, right? So the more is the thickness, जितना ज़्यादा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट जो है कम होगा. तो यहाँ पर भी we will have a small amount of del L. Okay, so from here we get a relation del L is inversely proportional to 1 by A. So basically ये जो this area, this relation is same as this number of springs connected in parallel relation, and we are talking about rods, right? तो by combining these three, ये तीनों को अगर मैं combine करूँगा, this is del L is proportional to F, del L is proportional to L, and del L is proportional to 1 by A. So what we get, the expression becomes del L is proportional to F L by A. Now इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं del L by L is directly proportional to F by A. L को इधर लेके आ जाता है. So now from here we get a relation that is F by A, that is force per unit area, is equal to K times del L by L. तो ये होता है तुम्हारा
the relation between two terms. One is force per unit area and the other one is the change in length by original length. So this thing which you see in here, ये जो है F by A, this is known as the stress. इसको कहते हैं stress. ये है stress. And this one del L by L, that is the change in length with divided by the original length, this is known as the strain. And this K part, which is the constant which we have in here, is known as modulus of elasticity. तो एक एक करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे. इसको कहते हैं modulus of elasticity. So this is what you get the relation between stress and strain. Now let us go into stress. तो stress actually होता क्या है? तो stress is the internal restoring force acting per unit area of a deformed body. तो stress क्या है? It's an internal restoring force acting per unit area of the deformed body. तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि stress वो बॉडी खुद पे जो अप्लाई करता है. तो सपोज ये जो मैंने स्प्रिंग यहाँ पर स्प्रिंग पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स दिया था, तो इसके यही फोर्स के अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा था, वो स्प्रिंग जनरेट कर रहा था. तो स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्म्ड बॉडी. तो ये डिफॉर्म्ड बॉडी पे एक्ट कर रहा है. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया. एंड एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एम एल टी टू -2. कैसे? फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स इज न्यूटन एंड देन एरिया इज व्हाट? मीटर स्क्वायर. ओके, तो डायमेंशन क्या होगा? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको करूँगा डिवाइड बाय एरिया. एरिया मतलब एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. तो मास मीन्स m, एक्सेलरेशन मीन्स l t टू -2, और यहाँ पर एरिया, तो एरिया क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर. एक्चुअली यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर l टू -1 होगा, तो ये हो जाएगा m l टू -1 t टू -2. So this is what is the unit for stress. Okay, now the fractional change in configuration is called the strain. तो strain क्या होता है? यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है del L by L, the fractional change in the configuration is called the strain. Okay, so change in configuration divided by the original configuration. जो हम लोगों ने देखा change in length divided by the original length. It has no unit. Obviously इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ बाई लेंथ है या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऐसे करके हम लोग देखेंगे. बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होता है. तो इट हैज़ नो यूनिट्स एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नाउ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर देखो, अगर मैं के को निकालना चाहूँगा तो के क्या बन जाएगा? एफ बाई ए डिवाइड बाई डेल एल बाई एल. तो इट इज़ नथिंग बट स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन. एंड इसी रेशियो क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलाई. ओके, तो ये होगा दीज वेरियस द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. कितना तरह का स्ट्रेस होता है? तो नॉर्मल स्ट्रेस, इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू एन ऑब्जेक्ट देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस. तो अगर मैं कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मली अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब सपोज मेरा पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आई एम putting a force that is perpendicular to the body is known as normal stress. Okay, normally मतलब perpendicularly apply कर रहा हूँ, तो then the stress is called normal stress. Now दो तरह का होता है. If there is an increase in length, अगर length बढ़ता है then stress is called tensile stress. If there is a decrease in length then the stress is called compression stress. जैसे कि इधर देखो. Now in this diagram, so what we see here, we have a length, this is a rod of length L0. Now if we apply a force, मैं दोनों साइड से अप्लाई कर रहा हूँ एक फोर्स, यहाँ पर दोनों साइड से फोर्स अप्लाई किया. सो व्हाट वी सी इज दैट देयर इज एन इलोंगेशन, डेल एन अमाउंट ऑफ लेंथ बढ़ा है. तो दिस वन इज नोन एज टेंसाइल. दिस इज द टेंसाइल. यहाँ पर उसका मतलब क्या है? यहाँ पर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, एंड हियर
the length of the rod is increasing, तो इसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स, राइट. एंड द अदर वन यू सी, यहाँ पर मैं जो फोर्स है फिर से नॉर्मली एक्ट कर रहा है, लेकिन बट हियर इट इज़ कंप्रेसिंग द बॉडी. तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन. क्यों कंप्रेसिंग? बिकॉज यहाँ पर देखो लेंथ रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको कहते हैं द फोर्स अप्लाइड इज कंप्रेशन. तो फोर्स अप्लाई, ये फोर्स नहीं है टेंसाइल फोर्स, इसके अगेंस्ट जो बॉडी अप्लाई करेगा उसको कहते हैं तुम्हारा टेंसाइल स्ट्रेस. एंड सेम थिंग, इसके अगेंस्ट जो बॉडी अप्लाई करेगा फोर्स, उसको कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रेस. ये डिफॉर्मिंग फोर्स, ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो तो डिफॉर्मिंग फोर्स है. अब वही फोर्स को जब मैं हटा दूंगा, when you remove that force, there will be a force which will be applied by the body to get back to its equilibrium position. उसको कहते हैं compression force. ओके, तो ये जो F है ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी अप्लाई करेगा उसको कहते हैं टेंसाइल या तो कंप्रेशन स्ट्रेस. नाउ वी हैव वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो देखो, इफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली on an object on all over its surface that changes its volume, then the stress is called volumetric stress. तो all over its surface, तो suppose मैं क्या कर रहा हूँ कि लिक्विड, यहाँ पर लिक्विड में, इसको मैं बाद में अच्छे से डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर अगर मैं कोई सॉलिड पुश करता हूँ तो यहाँ पर व्हाट वी हैव इज़ दैट कि एवरी सिंगल पॉइंट पे प्रेशर अप्लाइड होगा, और उसी प्रेशर की वजह से एंड द प्रेशर विल बी टेंजेंशियल नॉर्मली टू एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द सर्फेस, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर देयर विल बी अ चेंज इन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम, वो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा, स्ट्रेन आया. तो स्ट्रेन आने से you will get the volumetric stress, and this is done by the volumetric stress. Okay, volume change हुआ because of the due to the pressure applied, and pressure होगा तो तुम्हारा force आएगा and restoring force आएगा, and to get that restoring force applied by the body to get back to its original shape is known as the volumetric stress. Okay, now tangential or shearing stress. तो tangential और shearing stress क्या होता है? If deforming force is applied tangentially to an object, then the stress is called shearing stress. It changes the shape of an object. तो suppose tangent, जैसे tangent क्या होता है? Tangent क्या है? यहाँ पर तुम्हारा सर्कल है, तो सर्कल का tangent क्या होगा? A line which passes through one point of the circle. Now think of, यहाँ पर एक सिलेंडर है, तो अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूँ, टेंजेंशियल फोर्स मतलब इसके सरफेस के अलॉन्ग ये साइड एक फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा इसका? सो हियर द शेप ऑफ द बॉडी विल चेंज लाइक दिस, वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, एंड इट विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पर ये जो है वी कैन सी दैट this amount of change. तो ये अगर लेंथ ऑफ द सिलेंडर हुआ तो we see a del L amount of change in there, and this angle is known as theta. ओके, तो ये होता है टेंजेंशियल फोर्स. अगर मैं अप्लाई करूंगा तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा. इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू ऑब्जेक्ट, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस. उसको शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं. इट चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो, जैसे कि यहाँ देखो, तो ये जो फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो इसके लिए टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा बॉडी पे, और यहाँ पर डेल एक्स अमाउंट ऑफ चेंज आया है. ओके, एंड जनरली विल टेक दिस वन इज थीटा, जो हम लोग बाद में इसको डिराइव करके दिखाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पर आएगा tan थीटा आएगा, एंड tan थीटा विल बी गिवन बाय व्हाट? इट इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर तुम्हारा डेल एक्स है, एंड बेस इज योर perpendicular is your del x, and the base is your L. Using this relations we will find the formula for shearing stress or tangential stress. Now the next one is types of strain. कितने तरीके का strain होता है? हम लोग ने
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखा है, तो उसी के corresponding we have types of strain. According to the change in configuration, the strain is of three types. Longitudinal strain, जैसे कि यहाँ पर हुआ longitudinal strain, जो टेंसाइल स्ट्रेस और compression स्ट्रेस अप्लाई करके होता है. तो इसमें क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ पर जैसे लेंथ चेंज हुआ उसका डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इससे हम लोग को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, व्हाट इज दैट? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. तो इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ. So next what we have is shearing strain. So just like by applying a shearing stress or tangential stress, we get a shearing strain which I was talking about. तो यहाँ पर tan theta del x by L आएगा. So that is the amount of change we have. तो del x by L is equal to tan theta and theta is very very small. हम लोग यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एंगल थीटा होगा, ये बहुत छोटा होगा और इतना छोटा होगा कि tan थीटा का जो वैल्यू है, it will be directly nearby equal to theta only, where theta will be in radian. यहाँ पर theta radian में होना चाहिए. Okay, so theta is the angular displacement of the plane. तो angular displacement of the plane perpendicular to the fixed surface. तो theta is the angular displacement of the plane. तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन टू द परपेंडिकुलर सरफेस. तो ये परपेंडिकुलर सरफेस है, तो इसके अक्रॉस ही में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही होता है थीटा. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन. नाउ द नेक्स्ट वन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब वो वाला यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो हाइड्रोलिक कॉम्प्रेशन क्या होता है? A solid sphere placed in a fluid experiences a force. तो अगर मैं कोई भी सॉलिड स्फीयर को अगर फ्लूइड में प्लेस करता हूँ, तो क्या करेगा? experiences a force which acts in perpendicular direction at each point of the surface. तो यहाँ पर perpendicular हर एक पॉइंट पे वो फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा. Then the body is said to be under hydraulic compression. तो यहाँ पर हाइड्रोलिक कॉम्प्रेशन में है, तब जाना जाएगा whenever the force is acting perpendicularly to each point of the surface. Now this leads to decrease in its volume without any change of geometric shape. तो यहाँ पर क्या होगा? when we have a force applied like this to every single point on that body, this leads to what? The volume, the change in volume or decrease in volume of the solid. लेकिन उसका ज्योमेट्रिक शेप उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों का वॉल्यूम ज़रूर चेंज करेगा. देन द बॉडी डेवलप्स एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्सेस अप्लाइड बाय द फ्लूइड टू रिस्टोर बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन टेकन आउट ऑफ द फ्लूइड. अब सेम बॉडी को जब मैं बाहर निकालूंगा, व्हेन आई टेक आउट ऑफ द फ्लूइड, तो व्हाट हैपेंस इज दैट तो बॉडी पे देयर विल बी सम रिस्टोरिंग फोर्सेस सेम एज एवरी सिंगल पॉइंट पे एक्ट करेगा टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. जब मैं वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या बोलता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स में हटाऊंगा तो ऑलवेज द रिस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. So that's what is happening. The body develops an internal restoring force that are equal and opposite to the forces applied by the fluid to restore back to its original shape. The internal restoring force per unit area in this case is hydraulic stress. हमेशा वही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बाय पर यूनिट एरिया तुम्हारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है. और इसका यूनिट देखो प्रेशर जैसा ही है, जैसे प्रीवियसली वो स्ट्रेस प्रेशर इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया. सो स्ट्रेस का भी यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो बोथ आर द सेम यूनिट. तो इसका पास्कल भी हो सकता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के अलावा. नाउ वी हैव इज स्ट्रेन. द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन. अब ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर से इसका चेंज इन वॉल्यूम होता है, वंस वी पुट इन द लिक्विड, दैट स्ट्रेन इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो इन चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. नाउ वी हैव हुक्स लॉ. तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बहुत छोटा डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है. तो प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन.
मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उस बॉडी के ऊपर उतना उसका डिफॉर्मेशन होगा. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन. द ग्रेटर द फोर्स, the greater is the strain, where K is the proportionality constant and is known as the modulus of elasticity. Now इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँगा, the graph of stress versus strain, so here we have stress and here we have strain. So what will happen is a graph will be like this. ऐसा कुछ ग्राफ होगा because they are directly proportional. तो जितना मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू के होगा. ओके, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हुक्स लॉ कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ.